दोस्तों, जलंधर के बाद हमारा कारवां चंडीगढ़ पहुंचा और तब तक बहुत लोग हमारी कोशिशों को अप्रिशिएट करने लग गए थे। और वहीं पर प्रीति जी, जो कि मीरा रोड में रहती हैं और बीजेपी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमारी कोशिशों को सलाम किया, हमारा हौसला बढ़ाया और हमारे लिए एक ग्रुप क्रिएट किया, हिंदुस्तानी ग्रुप, और उस ग्रुप में कम से कम 1000 लोगों को ऐड किया। और हमारी कोशिशों को, जो भी हम रील बनाते थे, जो भी हमारा पूरा दिन का दिनचर्या होता था, उस दिनचर्या को वो अपने ग्रुप में डालती थी, खुद डालती थी और बोलती थी कि आप इस फिल्म को हौसला दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। और ऐसे फिल्म मेकर को, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, जो कि ऐसी सिनेमा यात्रा पे निकले हुए हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और सब लोगों को, मतलब आने वाले, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को जानते हैं, उन सबको अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें। तो थैंक यू प्रीति जी, और इस तरह से हमारा कारवां स्टार्ट हुआ। थैंक यू सो मच प्रीति जी, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। और सच में आपने जिस तरह से हमें हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, और लोगों को हमारे वीडियोस देखने के लिए बोल रहे हैं, फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये हमारे देश की जीत है। ये मेरी जीत नहीं है, हमारे देश की जीत है। तो ये देश के सिनेमा की यात्रा जो है देश के साथ, वो सच में रंग ला रही है और पूरा देश सपोर्ट कर रहा है। और आपका दिल से थैंक यू, इतना सपोर्ट करने के लिए, ऐसे ग्रुप बनाने के लिए। मतलब ये सच में हमारे लिए किसी ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं है। हमें सच में एक हौसला मिल रहा है कि देश हमारे साथ है। और आज ही बॉस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अमेरिका में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई और स्टैंडिंग ओवेशन मिली, और हमें मतलब 15 को बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिल रहा है, 7 समंदर पार अमेरिका में। तो ये हमारे देश की जीत है। तो थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, बॉस्टन अमेरिका में 7 समंदर पार हमारी फिल्म नवरस कथा कोलाज की स्क्रीनिंग हुई। और स्क्रीनिंग के बाद लोग इतना कनेक्ट हो गए, वहाँ पे फॉरेनर्स थी, इंडियंस थे, सबकी आंखें नम थी और सब इतने कनेक्ट हुए। आइए फिल्म खत्म होने के बाद जो वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ उसको देखते हैं। That was Naya Din Nayi Raat by Sanjeev Kumar, and that also portrayed different emotions and rasas. Wonderful movie because the theme is women's issues. Why women are still vulnerable and vulnerable is the right word that I can think of. I think it will be really helpful to have a deeper conversation, because Zar, Joru, Zameen, these have been the 3 tools of control. Whether it's a war, women are used as a tool of victory and control. If you have taken away their dignity, women are representing the dignity of that particular country or tribe. So if you take away their dignity, you have kind of you have kind of defeated them or claimed victory. So that's good thought, Pratibha. I absolutely agree with that. Case in Kolkata, it's more to do with corruption and setting an example that if you stand against the corruption, this is what will happen to you. It was not about lust. This was not about lust. So these are deeper conversations I think we should have in these events, especially because this film festival is dedicated to women's issues. I'm feeling very, invested in this case. Out of it. Yes. Is that something like that? How can we have deeper conversations? I'm happy if any one of you could pick that question, or did you have someone in mind? No, both. Anyone? That is really a topic of discussion that I was just thinking about. And the next festival that I'm covering is a South Asian Film Festival in Chicago. Do we have deeper conversations? What are these festivals meant to do? Even when you talk about funding, they will give funds to humanitarian causes, but the film festivals are seen more as a cultural entity. So it is very important to take a particular topic
And then let's see what is the festival going to do beyond that. And I'll give an example of the South Asian Festival in Chicago. A few years ago, there was a documentary made by a man whose father was paralyzed. So the father went into deep depression, but after that, he pulled himself out of it and started helping people like him. When the documentary was shown at this, It's the labor of love. We have the producer of Navras Katha Collage, Mr. Patel. Please come on stage. Congratulations. Thank you, Mr. Patel. Thank you. दोस्तों ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और हमारी पूरी नवरस कथा कोलाज की टीम के लिए प्राउड मोमेंट था कि 7 समंदर पार विदेश में हमारी भारत की फिल्म नवरस कथा कोलाज को बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड मिला। ना कि इंडियन बल्कि वहाँ की विदेशी महिलाओं के भी आंख में आंसू थे फिल्म देखने के बाद। सबने स्टैंडिंग ओवेशन दी, सबने हौसला अफजाई की और ये मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरे पार्टनर ने 7 समंदर पार जाकर नवरस कथा कोलाज के लिए बेस्ट सोशल फिल्म का अवार्ड जीता। We have the producer of Navras Katha. ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਵਰਸ ਕਥਾ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਰਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, 9 ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 9 ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਣੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 9 ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ 9 ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੀਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਬਾਈ 1 ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਫਿਲਮ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ, ਪਰ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਛਕ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਬਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵਰਸ ਕਥਾ ਕੋਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਵਰਸ ਕਥਾ ਕੋਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਚਾਈ ਸਰ ਨਾਲ। दोस्तों हमारा कारवा कश्मीर से जम्मू, जम्मू से अमृतसर, बाघा बॉर्डर, कड़कड़गला, जलंधर और जलंधर के बाद चंडीगढ़ पहुंच चुका था। इस बीच हमारे कम से कम मतलब 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी और 20-25 न्यूज़पेपर में हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके थे और हर जगह अवेयरनेस होने लगी थी कि नवरस कथा कोलाज की टीम कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल कर रही है। तो जितने भी पत्रकार, जितने भी जर्नलिस्ट लोग थे, उन सबको एक अलग तरह की एक्साइटमेंट, एक अलग तरह की क्यूरियोसिटी होने लग गई थी, क्योंकि ये पहली ऐतिहासिक देश की सिनेमा यात्रा थी जब कोई सिनेमा प्रेमी, फिल्म मेकर एक अपना फिल्म की जर्नी के लिए, फिल्म को प्रमोट करने के लिए ऐसे यात्रा पे निकला था। और हम लिटरली अपने जितने भी पत्रकार भाई आ रहे थे, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक्टिंग में भी सिखाता हूँ कि आप फील करोगे तो सामने वाला फील करेगा। ये एक्टिंग का सिंपल सा फंडा होता है। और इंटरव्यू और पत्रकार के वक्त भी आप जब दिल से बात करते हो तो दिल तक जाती है। तो मैं लिटरली अपने सारे पत्रकार भाइयों से मतलब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता था कि आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को। आज देश को ज़रूरत है अच्छे सिनेमा की, और सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारे सिनेमा को प्रमोट किया, हमारे सिनेमा को सपोर्ट किया। दोस्तों इसी बीच जो हमारे लखनऊ फ़ोटोग्राफी वाले अंकित भाई थे और उनके साथ जो असिस्टेंट थे महिपाल,
उनके बेचारे की ज़िंदगी की पहली यात्रा थी, तो कश्मीर से कन्याकुमारी हम तो भूखे प्यासे रात दिन को दिन नहीं देख रहे थे, रात को रात नहीं देख रहे थे, और बस एक ही मकसद था कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल करें। तो ये बच्चा ही था बेचारा महिपाल, इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसको लिटरली लूज मोशन लग गए, चक्कर आने लग गए। तो हमने चंडीगढ़ से इसको विदा किया महिपाल को, और सोनू यहाँ पे चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन में उसको छोड़ के आए, और इसको हमने बोला कि बस घर पहुँचते के साथ ही लखनऊ फ़ोन कर देना। फिर स्वर को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, स्वर भी सोनू के साथ गया हुआ था, तो स्वर को पिज़्ज़ा खिलाया चंडीगढ़ का सोनू ने, और हमें भी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो मैंने मेरी टीम को बोला कि यार हमें बिल्कुल ही देसी आलू के परांठे खाने हैं, जो लिटरली पंजाब के जो टिपिकल ढाबा होता है ना, मतलब बिल्कुल ही जहाँ पे सड़क किनारे ढाबा होते हैं, तो हम लिटरली वहाँ पे गए, और वहाँ पे हमने आलू के परांठे और मक्खन और लस्सी दबा के मतलब खाया। और उसी दौरान जितने भी वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, मैं उनके पास गया और उनको बताया कि हमारी फिल्म आ रही है नवरस कथा कोलाज, आप यूथ हो, आप प्लीज़ यस में बिलीव कीजिए, आप ही के लिए हास्य रस पे एक मैसेज है। तो उन सब ने हमारे साथ फ़ोटो खिंचाई, हमारा ट्रेलर फॉरवर्ड किया, और बोला कि हम आपका फिल्म का बहुत प्रचार करेंगे, अपने सारे ग्रुप में डालेंगे। और उसके बाद हम देश भगत रेडियो में गए और वहाँ पे हमारा इंटरव्यू हुआ। तो आइए इंटरव्यू की कुछ झलकियाँ देखते हैं नवरस कथा कोलाज की। किसी ने क्या खूब कहा है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ आरजे मिली और आप सुन रहे हैं 107.8 FM देशभक्त रेडियो आपकी आवाज, और मेरे साथ है आरजे राहुल। बिल्कुल शुक्रिया मिली, और बहुत ही प्यारी बात मिली ने कही कि हादसा बिल्कुल ज़रूरी है। और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में बने हैं हमारे ग्लोबल लोकल वोकल शो में, उनके जब किरदार देखें और जिस तरह से उन्होंने फिल्माया है खुद को, बड़े सारे हादसों को उन्होंने बयान किया है, और बहुत ही मज़ा आएगा। खास बातचीत होगी। स्टूडियो में स्वागत है हिंगोनिया सर, अभिषेक सर और नाजमा मैम आपका। और सबसे पहले आपको मैं आप मिली कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, स्पेशली 58 इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड मिले हैं, और आपकी पूरी टीम की क्या फीलिंग है सर? बहुत ये ऑनर फिल्म है, और मतलब ऐसा लगता है कि मतलब देश हमें मतलब सराह रहा है। और जब मैंने ये सोचा कि मतलब इसको रिलीज़ करना चाहिए, वो सोचा मैंने जब हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई और मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला वहाँ पर। तो वहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया, वहाँ पे मंडी में एक ही थिएटर हॉल है कुसुम, और उसके जो थिएटर ओनर है वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि प्रवीण आपकी जब फिल्म आएगी, चाहे कितने ही बड़े सुपरस्टार की फिल्म आ रही हो, वो नहीं चलेगी, यहाँ पे नवरस कथा कोलाज चलेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये तो देश हमें मतलब बुला रहा है कि आप आओ, ये देश का सिनेमा है, देश तक पहुँचे। इसीलिए फिर हम ये यात्रा पे भी निकले हैं, देश की यात्रा पे, कश्मीर से कन्याकुमारी, देश की सिनेमा यात्रा देश के साथ। क्या बात है सर, नवरस कथा कोलाज, ये नाम ही क्यों? मैं थिएटर से हूँ, और जब मैं थिएटर करता था तो हमारे टाइम पे एनएसडी में देवेंद्र नाथ अंकुर जी कथा कोलाज किया करते थे, कहानियों का मिक्सर। कथा मतलब कहानियाँ, और कोलाज मतलब जैसे फोटो का कोलाज आता है, तो कहानियों का कोलाज। तो वो मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, इन सब की कहानियों को मिलाकर एक कोलाज और एक कहानियों का मंचन करते थे। तो मुझे वो बड़ा प्रभावित करता था अपने थिएटर के दिनों में। तो जब मैंने सोचा कि मुझे एक फिल्म बनानी है, और एक ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें मेरे हर तरह का टैलेंट दिखे, एज एन एक्टर, एज एन राइटर, एज एन डायरेक्टर, और हम देश को कुछ बात भी कह पाए, कुछ सामाजिक मैसेज भी दे पाए। एक फिल्म बनाता तो एक मैसेज मिलते, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं नवरस 9 इमोशंस पे 9 कहानियाँ मैंने लिखी, और उन 9 कहानियों को संदेश की उसमें हल्की सी परत है जो आपको सोचने में मजबूर करती है। आपको रुलाएगी, आपको हंसाएगी, आपको गुदगुदाएगी, और जब आप फिल्म देख के ख़त्म होते हैं तो आप 2 दिन तक उसके औरे से निकल नहीं पाते। तो ये नवरस कथा कोलाज की जीत है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि ऐसा सब्जेक्ट हो जहाँ पे मैं अपना पूरा टैलेंट दिखा सकूँ। तो एज एन एक्टर, जैसे आपने अभी बताया कि मतलब 9 रूप है, तो 9 आपको 9 जिंदगी दिखेगी। और खूबसूरती इसकी ये है कि मतलब मैं ज़्यादा ऐसा पॉपुलर तो फेस हूँ नहीं, लेकिन जब फेस्टिवल में स्क्रीनिंग होती थी तो लोग देख के बोलते थे 5 स्टोरी के बता, यार ये एक ही आदमी जो 9 रोल इतने सारे रोल कर रहा है। तो ये हमारी जीत थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये मैं सक्षम हुआ जो मैंने सोचा। आप राइटर भी देखेंगे तो 9 तरह की राइटिंग है,
डायरेक्टर भी देखेंगे तो 9 तरह की टेकिंग है, और इसलिए ये 9 इमोशनल राइड होने के साथ साथ 9 विजुअल राइड्स भी है। इसलिए मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसको शूट किया, और मैं यात्रा पे भी निकला हूँ। मैंने इसको श्रीनगर में शूट किया, हमने इसको जम्मू में शूट किया, भदरवा में शूट किया, पंजाब में शूट किया, बाघा बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, भगत सिंह जी के घर के वहाँ, और अद्भुत रस जो हमारा ताजमहल, हमारे ताजमहल में वहाँ पे शूट किया, दिल्ली में शूट किया, और बहुत ही इस तरह से पूरे देश की खूबसूरती दिखाने की कोशिश। सर, जब आपके 9 किरदारों की जब बात होती है तो मुझे सबसे पहले माइंड में आता है संजीव सर, जिन्होंने अपनी मूवी में बड़े सारे डिफरेंट किरदार निभाए थे, और साउथ के एक एक्टर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कमल हसन जी, मतलब उन्होंने दशावतारम मूवी में बड़े सारे किरदार किए। तो सर, किस तरह के आपको चैलेंज फेस करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे बड़े सारे एक्टर हैं जो एक किरदार से नहीं उभर पाते, लेकिन 9 को एक ही मूवी में करना अपने आप में एक चैलेंज। यस, बिल्कुल चैलेंजिंग था, लेकिन क्योंकि मैं इस फिल्म का राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, तो ये जब मैंने पूरा डिज़ाइन किया, सबसे पहले तो मैंने लिखे, और लिखने के बाद जब मैं लिख रहा था तो राइटर जब लिखता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी हिस्ट्री, उसकी जर्नी में एक कनेक्ट हो जाता है, वो उसके पूरे परिवार का हिस्सा हो जाता है। तो जो ये 9 दुनिया है, ये 9 दुनिया लिखते वक्त ही मेरे माइंड में थी, वो किरदार मेरे माइंड में थे एज एन डायरेक्टर। तो जब पहले तो मैं चाहता नहीं था कि मैं ये 9 रोल करूँ, मैं चाहता था कि दूसरा एक्टर करे, बड़ा एक्टर करे, और लिखने का थॉट भी यही था कि एक ऐसी फिल्म लिखूँ जिसमें 9 रोल करने को मिलेंगे एक्टर को, तो एक्टर हाँ कर देगा। सी हम नए फिल्म मेकर की, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की जर्नी यही होती है, जंग यही होती है कि सामने वाला मतलब एक्टर किसी तरह हाँ कर दे, जो कि हो नहीं पाता। तो इसलिए मैंने ये रचा था कि मतलब चलो एक्साइटेड हो गए, बट वहाँ पे भी उनको एक्साइटमेंट देखी नहीं, और फाइनली मुझे ही अपने आप को कास्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं ऐसा एक्टर चाह रहा था जो 24 घंटे मेरे साथ रहे। मैं बोलूँ उठे तो उठे, बैठे तो बैठे, वर्कशॉप करे तो करे, मोटा हो तो हो, पतला हो तो हो, गंजा हो तो हो, एक आवाज में सारे काम करे। तो ऐसा मेरे अलावा मुझे कोई दिखा नहीं, क्योंकि ना मेरे पास इतना धन था कि मैं इतना सारा पैसा दे सकूँ, और 2 साल तक इतना समर्पित त्याग तपस्या कोई कर नहीं पाता। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी मुझे अपने आप को कास्ट करना पड़ा, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये धंधा भी है, आपको बजट कंट्रोल वे में चलना है। अब मैं हूँ तो मुझे कोई वैनिटी की जरूरत नहीं, मेरे को तो चद्दर बैठा दो, वहीं पे बैठ के हम लोग अपना मेकअप भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि हम सिनेमा लवर, हमें सिनेमा से प्यार है। फालतू की जो लगेज है, जो मतलब थका देते हैं आपको चलने में, उन लगेज से प्यार नहीं है। हमारे गुरुजी ने भी ये कहा था कि प्रवीण, अगर लंबी यात्रा करनी है तो लगेज कम लेके चलिए, तो वो बात आज भी मैंने दिमाग में बैठा के रखी है, इसलिए लगेज कम लेके चल रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, वॉरियर टीम है, ये हमारे को प्रोड्यूसर है अभिषेक, हमारे जो PR टीम है नाजमा जी, वसीम जी, इनको जब मैंने बोला कि मैं ऐसी यात्रा करना चाहता हूँ, तो दे आर द फर्स्ट पर्सन जो एकदम सीट से उठ गए, अरे वाह मजा आ गया, एक्साइटमेंट। तो ये जो पागलपन है ना, जो ऐसे ऐसे करने वाला, यही लोग चाहिए थे मेरे को। नहीं तो क्या बॉम्बे में सब करते रहे, सब थक जाओगे, क्या होगा, अरे थकान हो जाएगी, क्यों जा रहे हो, लेकिन ये एक्साइटेड थे, तो मैंने इनको चुना कि नहीं, हमें ऐसी ही टीम चाहिए, वॉरियर टीम। तो सर, नवरस कथा कोलाज की बड़ी एक यूनिक कहानी है, इस कहानी का आइडिया आपको कहाँ से आया? मतलब आइडिया जैसे कि मैंने कहा कि मतलब ऐसी कहानी, ऐसी फिल्म लिखी जाए जहाँ पे मेरा टैलेंट भी शोकेस हो, मैं देश को, समाज को कुछ कह सकूँ। तो ढांचा मेरे पास तैयार था, क्योंकि मैं एज एन ट्रेनर बहुत सारे एक्टिंग स्कूल में नवरस पढ़ाता भी था, 9 इमोशंस पे मैं कुछ वर्कशॉप भी करता था। तो एक ढांचा मेरे मतलब कॉलेज टाइम, थिएटर टाइम से ही था कि ऐसे ऐसे 9 इमोशंस के ऊपर ये है वो। तो जब मैंने लिखने की वो की कि मैं चाहता था कि मतलब ये जो 9 कहानियाँ हैं ये संदेश भी दे, क्योंकि एज एन फिल्म मेकर ये हमारा पहला फर्ज है कि हम समाज के लिए भी कुछ बनाए, कुछ ऐसी चीज बनाए जिसको देख के हमारा यूथ प्रेरित हो। जैसे मेरा बेटा है स्वर हिंगोनिया, वो अभी 19 साल का है, उसने भी एक्ट किया एक स्टोरी में, बाप बेटे की कहानी है शांत रस की। तो मैं यूथ को देख रहा था, आजकल का जो यूथ है बहुत ज्यादा शॉर्टकट पे चला गया है, बहुत ज्यादा मतलब सफोकेटेड हो रहा है, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, और मतलब रील ये हाइपर होता जा रहा है। तो मैंने उनको हास्य रस के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप अपने सपनों पे बिलीव रखो और यस में बिलीव रखो। आप यस में बिलीव रखोगे, ट्रस्ट में मिली रहो, आप यस में बिलीव रखते ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई नो आपको रोक नहीं पाएगा। यस में इतनी पावर होती है कि फाड़ देता है नो को। तो इसलिए मैंने यूथ को ये संदेश देने की कोशिश की है कि आप यस में बिलीव करो, आपके सपने भी पूरे होंगे, बेशक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम के पीछे
ऊपर वाले की मंशा है, ऊपर वाले का कुछ सीक्रेट है, वो आपको मजबूत कर रहा है। आप आई एम 46-47 और अगर मैं मतलब नवरस को 10 साल पहले 15 साल पहले बनाता तो इतनी गहराई नहीं दिखती। मेरे ट्रेलर देख के बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आज आप बोल रहे हैं कि अरे सर आईना है, इतना खूबसूरत आपने संबोधित किया कि जिंदगी का आईना, तो वो जिंदगी का आईना जिंदगी के एक्सपीरियंस से आया। और सर जब मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में एक डायलॉग बहुत ज्यादा हिट किया मुझे। उसमें बोलते हैं कि जरूरी नहीं आज के टाइम में डिवोर्स हस्बैंड और वाइफ का ही हो, पेरेंट्स और बच्चों का भी होता है। यस यस यस, ये बहुत बहुत दुख की बात है राहुल की ऐसे डाइवोर्स हो जाते हैं। तो मैं मतलब मुझे तो बहुत विचलित होता है। मैं स्टार्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब किसी बड़े एक्टर की ऐसे आता है ना कि ये दोनों अलग हो गए और दोनों स्माइल करते हुए अनाउंसमेंट करते हैं कि हम अलग हो रहे हैं, तो मुझे मैं बहुत दुखी होता हूँ। अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये भगवान ने बनाए ये दो दिल, तो आप सेल्फिशली इसको क्यों तोड़ रहे हो। और हस्बैंड वाइफ का सच में नहीं होता डाइवोर्स, पेरेंट्स और बच्चे का होता है। आप जिसने डाइवोर्स लिया है उनके बच्चों पे जरा नजर डाल के देखिए। वो बेचारे मतलब ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में कुछ है ना प्रलय आ गया है। वो दूसरे के पापा को देखते तो खो जाते हैं, मेरे पापा। वो मुझे बड़ा ना कचोकता है कि यार डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, प्यार से रहो। और हस्बैंड वाइफ प्यार से रहते हैं ना तो उनके बच्चे भी प्यार से रहते हैं। जैसे मेरा बेटा है, उसने मुझे और मेरी वाइफ को हमेशा प्यार में देखा, कभी लड़ते झगड़ते ऊंची आवाज में नहीं देखा। क्योंकि मैं तो एक संघर्ष और एक है ना एक अपने सपनों की यात्रा पे निकला हुआ, जिसमें मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी, उन्होंने मेरे को राजा बना के रखा हुआ। क्योंकि आपको पता है हमारी लाइन में बहुत सारा वो है, काम आता है तो बाढ़ आती, नहीं तो सूखा पड़ जाता है, काम ही नहीं होता। तो ऐसे टाइम पे फाइनेंशियल जब डिप आता है तो मेरे मम्मी पापा और मेरी वाइफ ने मुझे बहुत संभाला है। तो मेरे बेटे ने मुझे देखा है मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट करते हुए। तो जब उसकी गर्लफ्रेंड आई तो उसने उसको भी है ना उसी तरह से ट्रीट किया, क्योंकि उसने अपने पापा को देखा कि पापा हमेशा मम्मी को ऐसे रखते हैं। कभी भी ना किसी को, ना मैं अपने पेरेंट्स से सुनता गलत, ना उसको मेरी वाइफ से अपने पेरेंट्स के बारे में गलत सुनता, क्योंकि ये मेरा वर्ल्ड है। तो मेरे को मेरे वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस अच्छी चीजें ही चाहिए। तो जब मेरे बेटे ने मेरे को देखा तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी वैसे ही ट्रीट किया। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो हमारा जो यूथ है, जो हमारी जो चीजें हैं, कुछ नहीं है, पॉजिटिव की लड़ाई है। ना लड़की गलत है ना लड़का गलत है। आज के सर्कमस्टांसेस को हैंडल करना यूथ जो है वो भूल गया है। हमारे माता पिता और हमारा डाइवोर्स क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम एक दूसरे को सुनते थे। हम अगर मेरी वाइफ को गुस्सा आ रहा है तो हम एकदम धृतराष्ट्र बन के इधर उधर करके उस टाइम को निकाल देते थे। फिर जब वो भी नॉर्मल हो गए, हम भी नॉर्मल हो गए, तो हम प्यार से पुचकारते, उनको गलती का रियलाइज कराते थे, उनको गलती का रियलाइज होता था। तो यही इसीलिए मैं चाहता हूँ कि डाइवोर्स ना हो। रेप के ऊपर कहानी है तो रेप ना हो, क्योंकि रेप भी एक बहुत डिस्गस्टिंग चीज़ है। तो इन्हीं सब सोशल तानों बानों का कारवा है नर्वस करना पड़ा। नाज़मा मैम, मैं आपका ज़रूर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा इसमें कि पेरेंट्स और सन का भी डिवोर्स होता है। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे मैंने काफ़ी लोगों में देखा है, जब हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है तो वो लोग तो अपनी लाइफ सेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की लाइफ जो उसमें ना बहुत बिखर जाती है कि बच्चे पेरेंट्स के में किसको चूज़ करें, कि मदर को या फादर को। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। जो इसमें ये मैसेज दिया गया है ना, ये एकदम परफेक्ट है। और अगर हमारा समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो कभी भी लाइफ में ये मौका नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है कि पति पत्नी तो अपना फ्यूचर बना लेते हैं किसी और के साथ, लेकिन वो बच्चे जो है वहीं रह जाते हैं। तो ना उनको इधर से मम्मी का प्यार मिलता है ना उधर से पापा का प्यार मिलता है, क्योंकि उधर नई मम्मी आ गई है, उधर नए पापा आ गए, तो वो हमेशा अपने आप को अकेला फील करता है। तो इससे उसके फ्यूचर पे असर काफ़ी पड़ता है। क्या बात है। तो यही एक मैसेज हम देना चाहते थे अपनी फिल्म के थ्रू सभी लोगों को कि डिवोर्स जो है ना हो। ये 9 मैसेज जो है, ये 9 मैसेज एक ऐसी छाप छोड़ के जाने वाले हैं जो लोग एक मतलब इसको लाइफ टाइम याद रखेंगे। कि मतलब हर कहानी में एक ऐसा मैसेज है कि मतलब वो एक सीख देकर ही जाएगा। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको रियल में मतलब एहसास होगा कि हाँ, ये हमारी लाइफ की इर्द गिर्द की कहानियाँ हैं। ने जम्मू से लेकर ताजमहल तक शूट करा है, सबसे ज़्यादा आपको मज़ा और चैलेंजिंग कौन सी जगह लगी? जी, मैंने कश्मीर से लेके ऑलमोस्ट महाराष्ट्र तक शूट किया है बहुत सारी जगह पे। और
मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अनुराग कश्यप भाई की ना गैंग्स ऑफ वासेपुर की यूट्यूब में BTS देखी थी मेकिंग। ओके। तो अनुराग भाई ने एक चीज़ बोली थी कि जब मैं फिल्म बना रहा था गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो मैं ऐसी जगह बनाना चाहता था जहाँ मुझे सपोर्ट मिले। तो मुझे ये चीज़ है ना दिमाग में घर कर गई थी ये बात। तो मैंने भी जब ये फिल्म बनाने की सोची तो ये देखा कि कहाँ कहाँ के हमारे लोग हैं। जैसे कश्मीर में मैं जा चुका था, वहाँ पे मैंने जम्मू टूरिज्म का काम किया था JNK का, तो वहाँ पे मेरे लोग जान पहचान के थे। आगरा में मेरा स्टूडेंट है, एक्टिंग स्टूडेंट, उसका खुद का रिसोर्ट है, तो वहाँ पे मेरे जान पहचान है। दिल्ली में मेरे जीआजी पुलिस में है, तो वहाँ पे मेरी जान पहचान है। पंजाब में मेरा छोटा भाई है सोनू, वो वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर है, तो वहाँ जान पहचान के थे। गुजरात में ऐसे, तो मैंने ऐसी जगह ढूंढी कि मैं जाऊँ तो मुझे ना सपोर्ट मिलेगा, अरे यार अपना बंदा फिल्म बना रहा है, ऐसे खड़े नहीं जाते। तो इसी तरह से मैंने ऐसे देश के कोने कोने में ऐसे लोगों को चुना कि जहाँ पे मैं जाऊँ और मुझे पूरा ना सहयोग मिले और मैं थोड़ा बजट फ्रेंडली भी फिल्म को बना सकूँ। सर भद्रवाह में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? भद्रवाह तो मतलब स्वर्ग है। मैं जाके तो ढिंडोरा पीटूंगा और वहाँ पे जाके कि आप शूट कीजिए, ये स्वर्ग है मतलब। और भद्रवाह आई एम द फर्स्ट फिल्म मेकर जिसने वहाँ पे शूट किया है। वो वर्जिन जगह है, मतलब हमारी नवरस कथा कुलाज का एक तरह का कॉपीराइट हो जाएगा कि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम शूट किए, क्योंकि ट्रैवलिंग लोगों को बहुत मार देती है। बट मुझे ये था कि ट्रैवलिंग कुछ नहीं, मुझे लोकेशन अच्छे दिखे। फिल्म ऐसा लगना चाहिए कि मतलब ये कोई बहुत बड़े फिल्म मेकर की फिल्म है, उसका कैनवास ऐसा लगना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी का वैसा पूरा भौकाल दिखे उसमें। तो इसलिए मैंने अपने विजन में कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए देश के कोने कोने में शूट किया। तो सर शूटिंग करते हुए वक्त कोई यादगार मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, ये भदरवा की ही है। हम लोग भदरवा के लिए निकले थे सुबह और बहुत सारी अड़चने आ रही थी, बीच में रोड ब्लॉक हो गया था, लैंडस्लाइड हो गया था और हमें पहुंचना था, नेक्स्ट डे शूट करना था। फिर रोड क्रॉस हुआ, थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे पता चला कि बर्फ ही नहीं है और मुझे स्वर्ग दिखाना था। मैंने कहा यार मुझे स्वर्ग दिखाना है, मैं ये यहाँ पे घास के लिए थोड़ा है, पहाड़ के लिए। मैं लिटरली लेट गया और मैंने कहा मैं यस में बिलीव करता हूँ मुझे बर्फ मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, श्रीनगर चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, पूरी यूनिट को पैनिक कर दिया। मैं जनरली बहुत कम गुस्सा होता हूँ, बहुत शांत स्वभाव का, लेकिन उस दिन में ऐसा हो गया कि नहीं मुझे बर्फ चाहिए, भगवान कैसे नहीं दे सकता मुझे बर्फ। ऐसे मतलब भगवान से बात कर रहा हूँ मैं, कुछ अजीब सा आउटपटानी है वो। लेकिन मैंने यस की पावर आपको बता रहा हूँ कि मैंने यस में बिलीव करता था और आप देखिए भगवान का करिश्मा कि उन्होंने देखा कि ये बेचारा इतने सच्चे मन से ये पूरी टोली लेके आया हुआ है और उसको बर्फ चाहिए। तो मैंने जैसे सपोज ये लोकेशन सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ ना बर्फ मिलते हुए यहाँ मिली, ए ना मिलते हुए हमें जेड पे मिली, लेकिन उसी जगह पे मिल गई। तो हमने रूट इधर ना जाते हुए इधर कर दिया और हमें बर्फ मिल गई और हमारा कुछ भी शेड्यूल हिला नहीं। क्या बात है। तो सर से बातों का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए देशभक्त रेडियो 107.8 FM, देशभक्त रेडियो आपकी आवाज। भारत को भी दिखाएंगे। इसमें भी ये है कि आजकल की जो फिल्में बन रही है बिल्कुल ही हाई-फाई बन रही है, हम दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा कॉलेज है, वो अपना थोड़ा सा कॉर्पोरेट टाइप की चीजें हो रही है। या तो दूसरी तरफ ऐसी फिल्में बन रही है जो बिल्कुल ही जो हमारा 30 साल पहले भारत था, 40 साल पहले भारत था, वो दिखा रहे हैं। आज की जो चीजें हैं वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं फिल्मों में। तो हमने कोशिश किया है कि हम एक ऐसी फिल्म दिखाएं जो हमें प्रेजेंट दिखाए कि आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा या पहले क्या हो गया वो नहीं, आज क्या हो रहा है। जैसे आज के हम लोग संडे मिस करते हैं, मोबाइल फोन में लगे हुए हैं, बाप बेटे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो सब चीजें जो हमने दिखाना चाहते थे, वो हम प्रेजेंट दिखाना चाहते थे, उसके थ्रू हमने आप लोगों के सामने रखी है। बिल्कुल आपकी बातों से बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे गानों में से मेलोडी निकाल ली, जैसे वो मिसिंग रहती है वैसे ही। जी, पहले के टाइम पे कितने अच्छे बोल, आजकल जब तक रहेगा सब जानू। अब ये लिरिक्स कौन याद रखेगा। बिल्कुल सर से और भी दिलचस्प बातें करेंगे, सर से एक अलग साइड भी जानेंगे, मैम से बड़ी सारी बातें करेंगे और अभिषेक सर से बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए देशभक्त रेडियो 107.8 FM, देशभक्त रेडियो आपकी आवाज। चीजें जानो, जैसे आपकी मूवीज में नो शेड्स हैं अलग अलग और बड़ी सारी बातें करने का और भी दिल कर रहा है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, समय का भगवान है। तो सर से बहुत कुछ सीखा, मैम से बहुत कुछ सीखा, अभिषेक सर से, प्रवीण सर से। सो आई होप ये चीजें हमारी जिंदगी में भी प्रभाव डालेंगी, बहुत कुछ चेंजेस जरूर लाएंगे और आपकी लाइफ में भी बड़ा सारा चीज लाएंगे। सो अगले शो में हम फिर से ऐसे नए गेस्ट को मिलाएंगे जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो सुनते रहिए तब तक देशभक्त रेडियो 107.8 FM, देशभक्त रेडियो आपकी आवाज।
ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਚੈਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਧਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਰਹੇ ਸਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ? चंडीगढ़ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇਰੇ ਬੰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? बस हमारी चंडीगढ़ की रौनक तेरे बम्बे से कम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, आए है देखिया फिर चंडीगढ़ शहर ऐदा ही है फिर कराई हुई हत्त। चलो हम थोड़ा दिखाने ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ प्रमोशन किवें करांगे। दोस्तों शाम के वक्त हम सुखना लेक पहुँचे और सोनू ने कहा था कि सर यहाँ पे सुखना लेक में ज़रूर जाना है, यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं, क्राउड होते हैं और ये यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। और वाकई में जब हम चंडीगढ़ में सुखना लेक गए सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारी फिल्म को प्रोत्साहन दिया, हमें गले लगाया, हमें बहुत आशीर्वाद दिया वहाँ की माताएं बहनों सब ने। और फिर टाइम आया विदाई का। सोनू हमसे विदाई लेकर जा रहा था और हमें आगे बढ़ना था, मंडी के लिए जाना था। तो सोनू गले मिला हमसे, मतलब हम बहुत इमोशनल हुए क्योंकि सोनू ने मतलब यहाँ पर भी बहुत हेल्प करी हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी जर्नी में। और जब हम शूट पर आए थे तब भी बढ़ चढ़ के मतलब अपना दिल खोल के कह रहा सर आप कहाँ शूट करना चाहते हैं ये बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और उसी दौरान प्रमोशन में भी मतलब उसने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। तो थैंक यू सोनू। और जो भी फिल्म मेकर अगर पंजाब आना चाहता है और पंजाब में शूट करना चाहता है तो सोनू से कांटेक्ट कर सकता है। सोनू का नंबर और उसके प्रोडक्शन हाउस का नंबर मैं डिटेल दे देता हूँ। बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही दिलदार है, बहुत ही अच्छा है और आप इसको ट्राई ज़रूर करें। ये पंजाब का बहुत अच्छे से हैंडल करता है लाइन प्रोड्यूसर। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਰਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬੰਬੇ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਮੂਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬੰਬੇ ਤੇ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ। ਓਕੇ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ।